So when we talk about media management, what we are mostly thinking that, it's all about press relations, managing reputation with the press, with the journalists. But that is the PR perspective. When we talk about advertising, then we see that we use media or different mediums to promote our services, our ideas, and our products. For that, we use different mediums. It could be print, it could be electronic, it could be digital, and how we have to make sure that we are using them efficiently. So if we have to run our ads on on television, so हम लोग spots खरीदते हैं, वो फिर media buying वाला एक पूरा process आ जाता है. Of course, we also need to monitor the media, because until we'll monitor, we'll not know कि हमें किस तरह से हमारे लिए फायदेमंद मीडियम्स कौन से हैं. So it's kind of a judgment that you will see different mediums, and then you will see that which are the ones that are good for you. Now all this process, of course, to understand all of this process, we need to understand that what is the landscape of advertising and PR in any country that you are operating in. So right now we are focusing on Pakistan, and in Pakistan we need to understand the landscape that is there for advertisers, and that is there for people who are in the strategic communication business, which is your public relations. So in the next few lectures, we'll try to understand the landscape. I'll give you an overview of that. Then we'll talk about different advertising agencies and different PR agencies. There is going to be a graded activity related to the portfolio of the agencies as well. So that will be probably on Friday. And there will be a guest lecture as well, where I'll invite someone who will talk about the latest challenges which our industry is facing, so that you will have a practical perspective on things as well. So we'll be discussing this topic in the next few classes. Let us just share the screen, and then we can get started. Okay, so we are discussing Yes, ma'am. advertising and public relations landscape in Pakistan कि अभी currently हमारे यहाँ क्या situation है advertising industry की और PR industry की. Okay, so to understand this, we have to understand कि जो हमारा ये सेक्टर है उसमें मेजर प्लेयर्स कौन से हैं. बाय मेजर प्लेयर्स आई एक्चुअली मीन कि कौन कौन सी कैटेगरीज में अगर हम डिवाइड करें तो हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं. सो आई एम श्योर ऑल ऑफ यू माइट हैव आइडिया ऑलरेडी, और ये मैंने जब इनिशियल क्लासेस में डिस्कस भी किया था तो आपने बताया, एंड सम ऑफ यू मेंशन कि जी पैमरा है, गवर्नमेंट है, एड एजेंसीज है, डिफरेंट डिफरेंट आप लोगों ने agencies के नाम लिए. So if we have to kind of categorize it कि हम being a person जिसने advertising में जो है आगे कदम रखना हो, तो कौन से different जो है categories में divide कर सकते हैं. The first one is your government and institutions. By government I of course mean तो government led all the ministries and all the institutions which are there, and of course separate institutions as well जिनके through हमें काफी ज्यादा एडवर्टीजमेंट मिलती है, या वो एटलीस्ट जो ओवरऑल एडवर्टाइजिंग या पीआर लैंडस्केप है उसमें उनको पढ़ना या उनके बारे में जानना जो है वो बहरहाल हमारे लिए जरूरी है, बिकॉज दैट विल प्रोवाइड अस अ गुड केस स्टडी. देन कम्स आवर कॉर्पोरेट सेक्टर, और कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर अंदर मजीद कौन सी एंटिटीज हैं जिनको हम पढ़ सकते हैं. एंड देन कम आवर एजेंसीज. व्हाट डू आई मीन व्हेन आई से द वर्ड एजेंसीज हियर? मैम एड एजेंसी, पीआर एजेंसीज. एड एजेंसीज एंड पीआर एजेंसीज जो कि क्लाइंट्स के लिए काम करती हैं. ठीक है. सो लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट द गवर्नमेंट and institutions. So we have our Ministry of Information and Broadcasting, it's MOIB. ठीक है. जैसे कि अभी हमें पता है कि हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो है वो मिस्टर शिमली फराज इज द इंफॉर्मेशन मिनिस्टर. वो अक्सर टेलीविजन पर आप देखते होंगे कि आके जो है वो गवर्नमेंट का स्टैंड जो है वो बता रहे होते हैं, ऑल ऑफ दैट. बट इट्स अ सेपरेट मिनिस्ट्री. एक पूरी मिनिस्ट्री जो है वो सिर्फ गवर्नमेंट की इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग को डील करने के लिए बनाई गई है.
उस मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग में देर आर डिफरेंट विंग्स विच टेक केयर ऑफ ऑल द ऑफिशियल कम्युनिकेशन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पब्लिक, ठीक है। तो इसको हम जो है वो एक स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन के अंदर जो है वो लेकर आ सकते हैं। अब उसमें हमारे पास क्या क्या चीजें आ जाती हैं, फॉर एग्जाम्पल वी हैव पैमरा। पैमरा क्या करता है, पैमरा जो है जितना भी पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ऑल द रेडियो चैनल्स एंड ऑल द टेलीविजन चैनल्स, उनको रेगुलेट करता है। इफ यू वांट टू स्टार्ट अ टेलीविजन चैनल, आपने लाइसेंस भी पैमरा से लेना है। उसके बाद आपकी नशरियात का कंटेंट जो है वो मॉनिटर भी पैमरा के थ्रू हो रहा है। वो आपको बैन भी कर सकते हैं, आपको फाइन भी कर सकते हैं, आपको एडवाइस भी कर सकते हैं। इफ देयर आर एनी काइंड ऑफ टेक्नोलॉजीज विच आर टू यू नो बी मेड पब्लिक इन पाकिस्तान, उससे उसमें भी पैमरा का काफी से होगा कि फॉर एग्जांपल डीटीएच टेक्नोलॉजी आ रही है और दूसरी कंट्रीज के चैनल अगर यहाँ पे दिखाने हैं तो उसका क्या प्रोसेस होगा। ये सारी चीजें जो है वो आपकी जो है पैमरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से रिलेटेड जो है देखती है। फिर आपका जो है प्रेस काउंसिल आ जाती है, जो कि आपकी न्यूज़पेपर से रिलेटेड, प्रिंट मीडिया से रिलेटेड चीजें जो है देखती है। इसके अलावा जैसे एबीसी, आपने अक्सर नाम सुना होगा, विच इज योर ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन, जो कि न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स की सर्कुलेशन से रिलेटेड जो है वो ज्यादातर उनकी मैनेजमेंट उससे रिलेटेड होती है। Also, when we talk about the government, so we have to understand that our government is basically a major player in the overall advertising scenario, because they are the one जिनके जो बहुत ज्यादा एडवर्टीजमेंट देती है टू ऑल द मीडियम्स, न्यूज़पेपर्स में, चैनल्स में, रेडियो में। और वो जो एडवर्टीजमेंट गवर्नमेंट देती है उनकी बेस पे जो है वो हमारे जो मीडिया मीडिया चैनल्स हैं वो बहुत ज्यादा पैसे कमाते हैं, ठीक है। सो आपके एडवर्टाइजर्स हो गए चाहे वो, या चाहे आपके मीडिया चैनल्स हो गए, उनके लिए जो है वो गवर्नमेंट एक बहुत बड़ा क्लाइंट भी है इन दैट सिचुएशन, जिसके थ्रू उसको एड्स मिलते हैं। इन रिसेंट ईयर्स यू माइट हैव हर्ड अबाउट कि एक मीडिया पे क्रंच आया हुआ है, या टेलीविजन जो है, स्पेसिफिकली टेलीविजन चैनल्स और प्रिंट को लेकर ये बात बहुत डिस्कस हुई हुई है कि जी उनको इकोनॉमिकली जो है ना वो थोड़ा सा टाइट किया गया है, एंड दैट हैज बीन डन बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने ये किस तरह किया है, लाइक इफ यू हैव रेड अबाउट इट या आपने कहीं सुना हो? मैम उनको एड्स नहीं दे रहे हो अपने। यस, सो बेसिकली व्हाट यूज्ड टू हैपन इनिशियली के धड़ाधड़ जो है गवर्नमेंट के एड्स जो है वो तमाम चैनल्स पे और प्रिंट मीडिया में चलते थे। और हम लोगों के जो ये प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इतने सारे चैनल्स आ गए थे, तो न्यूज़पेपर्स आ गए थे, उनका एक मॉडल ऐसा था जो बहुत सस्टेनेबल नहीं था। कॉर्पोरेट सेक्टर के एड्स तो उनको मिलते ही मिलते हैं और उसकी बेस पे ही वो बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं, बट उसके कंपैरिजन में गवर्नमेंट के एड जो है वो और ज्यादा पैसों, यानी कि उनको उनको चलाने के जो है वो बहुत ही ज्यादा पैसे मिलते होते थे। तो जो कमीशन वाला एक सिस्टम होता है वो बहुत ज्यादा होता था एडवर्टाइजर के पास भी और आपके जो चैनल है उसके पास भी। बट विद पीटीआई गवर्नमेंट, they kind of started just रेगुलेटिंग ऑल ऑफ दैट। ये नहीं है कि अब एड्स नहीं मिल रहे हैं, और ऐसा भी नहीं है दैट पीटीआई गवर्नमेंट ने अपने जो है एडवर्टीजमेंट और प्रमोशन के ऊपर पैसा नहीं खर्च किया। एक्चुअली दे हैव स्पेंड ऑलमोस्ट इक्वल इफ नॉट मोर अमाउंट ऑफ मनी ऑन इट्स एडवर्टीजमेंट, क्योंकि हम लोग तो यही समझते हैं जनरली कि पीएमएलएन बहुत ज्यादा पैसे खर्च करती थी बड़े बड़े एड्स बनाने में, ये भी करते हैं। बट समहाउ अगर इन्होंने ये किया कि जो कुछ कुछ चैनल्स के एड्स जो है ना वो कम करती है या उन पे एड्स देने बंद कर दिए, तो फिर उसकी वजह से उन चैनल्स को या उन न्यूज़पेपर्स को या उन मीडिया ग्रुप्स को सरवाइव करना बहुत बड़ा मसला हो गया। तो ये एक इशू जो है ये ऑफ लेट जो है चला है। हम लोग बहरहाल ये एक दिन तरह थोड़ा डिटेल में भी डिस्कस करेंगे कि गवर्नमेंट जो है वो हमारा मेजर एड स्पेंड करती थी और उसी ने जो है वो अब कम कर दिया है। उसके पीछे रीजन जो है वो ये है कि they might want to regulate the media in some other ways, थोड़ा सा उनके ऊपर पाबंदियां लगाने की सूरत में उन्होंने ये काम किया है। एंड नाउ दे आर ऑल्सो लुकिंग फॉर न्यू एवेन्यूज कि अब जब हम लोगों ने एड स्पेंड कम कर दिया है इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट में, तो हम इसको किस तरफ डाइवर्ट कर सकते हैं और किस किस्म का मीडियम जो है उनको हम सपोर्ट कर सकते मैम हैं। शुरू में तो ये आई थी बात कि उन्होंने ना ओवरऑल ही अपने मीडिया पूरे मीडिया को एड्स देना बंद कर दिए थे, तो उन्होंने कहा था कि हम डिजिटली एड्स देंगे, वहाँ ज्यादा सस्ते पड़ते हैं। पर फिर ये हुई थी कि हर कोई नहीं पाकिस्तान में डिजिटली इतना इक्विप्ड होता कि वो सब कोई
यूज करे ये मीडियम्स, तो फिर इसलिए उन्होंने अब मीडिया में भी देना स्टार्ट कर दिए थे। कुछ ऐसी हुई थी Yeah, बात। so basically, actually, I'll be very honest. This decision is not just about कि वो digital को prefer कर रहे हैं as compared to print and electronic. ये भी उनकी एक तरह की जो है ना ऐसी decision है जहाँ पे they want to regulate the media in their own ways. ये basically बाकी mediums के साथ जो है या कुछ specific media houses के साथ government ने ना एक तरह की censorship लगाई। ठीक है, उसका तरीका ये किया कि पहले और तरीके से सेंसरशिप लगती थी। इस दफा उन्होंने कहा कि मीडिया हाउसेस को इस हद तक, इस लेवल तक ले आओ कि या तो वो बिल्कुल ही आपकी पॉलिसी को टो करें, एंड इफ नॉट देन वी आर गोइंग टू लिमिट देयर एड्स। तो ये प्रॉब्लम हुई, और इसमें हम टोटली पीटीआई गवर्नमेंट को नहीं कह सकते हैं, बिकॉज ऑनेस्टली स्पीकिंग इससे पहले जो प्रैक्टिसेस चल रही थी वो भी काफी ज्यादा अजीब थी। लेकिन बहरहाल समहाउ अदर दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अभी जो इकोनॉमिक क्रंच आया है हमारे मीडिया पे, उसके लिए हमारी बहरहाल इसमें जो MOIB है और ओवरऑल गवर्नमेंट है वो काफी हद तक रिस्पॉन्सिबल है। जो MOIB है उसके अंदर मजीद आगे आते हैं आपके प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, जो ओवरऑल जहां जहां भी प्रेस है उसमें एडवर्टीजमेंट आएगी गवर्नमेंट की, उसमें हमने कहाँ कहाँ स्पॉट्स लेने हैं उसको जो है वो डील करता है, और ओवरऑल जो पब्लिक रिलेशनिंग है आपकी गवर्नमेंट की उसको डील करता है। और इसके अलावा प्रोविंशियल लेवल पे जो है वो DGPRs होते हैं, विच आर योर डायरेक्टर जनरल ऑफ पब्लिक रिलेशन। ये लोग जो है इनके ये भी इदारे हैं जो कि हर प्रोविंस में हैं, और ये जो है ये स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन डील करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ योर गवर्नमेंट। ठीक है, सो MOIB ने जो आर्टिकल अपलोड किया था उसमें भी ये सारा कुछ डिस्कस हुआ हुआ है विद yes इवेंट्स, that जिन reading which इवेंट्स। I have discussed उसमें उन्होंने ये सारा डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। सो I will discuss that reading in the next class, ताकि फिर उसमें हम जरा ये गवर्नमेंट और इसको जरा थोड़ी सी डिटेल में देखेंगे, एंड देन we'll steer our discussion towards that। अच्छा, प्रोविंशियल गवर्नमेंट आ जाती है इसके बाद। आपकी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स है तो आपकी फेडरल और फेडरल के इदारों के जाहिर है अपने अपने बजट्स होते हैं और वो उस हिसाब से अपनी PR एडवर्टाइजिंग करते हैं। इसके अलावा आपके प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, तो प्रोविंशियल लेवल पे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि DGPRs होते हैं। आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंदर जो मिनिस्ट्रीज आ रही होती हैं वो भी अपनी पब्लिसिटी करती हैं। तो काफी हद तक आफ्टर 18th अमेंडमेंट वी नो नाउ कि उनकी काफी जो चीजें हैं वो उसमें खुद मुख्तार है। तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट से भी अच्छा खासा जो है वो एड स्पेंड हमें मिलता है, और एजेंसीज भी हमेशा ऑन लुकआउट होती हैं कि आपको उधर से प्रोजेक्ट्स मिल जाएं, या आपकी जाहिर है मीडिया जो है वो भी हर वक्त देख रहा होता है कि हमें गवर्नमेंट की तरफ से ऐड मिले। पंजाब गवर्नमेंट ऐड देते, KP के देते, सिंध देते, बलोचिस्तान देते, तो हमें जो है वो अच्छी कमाई हो जाएगी। Then, since we are talking about all the institutions, so we have Pakistan Army, and we know that Pakistan Army का अपना जो strategic communication unit है उसको ISPR कहते हैं, which is Inter Services Public Relations. So जितनी भी जो है communication जो है वो आर्मी के बिहाफ पे होती है, वो जो है आपका ISPR जो है उसको मैनेज करता है। सो ISPR में अब मजीद आगे मजीद जो है वो डिफरेंट विंग्स हैं और वो लोग मुख्तलिफ चीज़ों को देखते हैं। बेसिकली तो हम ज़्यादातर यही सोचते हैं कि जी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवा रहे हैं या प्रेस रिलीजेस भेज रहे हैं, बट इसके अलावा भी पिछले कुछ सालों में जो है ISPR ने अपने बहुत जो है वो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करना शुरू किया है। एंड बिकॉज विद देम the thing is that they want to create a narrative, it's just not about कि जी आपने कहीं पे कोई ऑपरेशन हो रहा है साउथ वजीरिस्तान में तो उसके बारे में लोगों को आके बताना है, या अपने जर्नलिस्ट को जो है वो डिफरेंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं तो उधर ले जाके विजिट करवाना है, सो दैट दे कैन टॉक अबाउट इट। फॉर एग्जांपल अगर CPEC से रिलेटेड आप रिपोर्ट्स देखते हो जनरली, तो वो आपकी ISPR सारा जो है वो उसको करवाती है, ऑर्गेनाइज करवाती है, एंड दे मेक श्योर कि जर्नलिस्ट जाए उनके साथ, वो बलोचिस्तान में एक पूरा गाइडेड टूर करवाएं और वहाँ पे वो रिपोर्टिंग करें और रिपोर्ट्स लिखें। सो जिसको अक्सर एम्बेडेड जर्नलिज्म भी कहा जाता है। एम्बेडेड जर्नलिज्म इज व्हेन आप जो हो वो फौज के साथ या आर्मी के साथ मिलकर उनकी सपोर्ट में जाके उनकी सपोर्ट के साथ जो है वो जर्नलिज्म करते हो। जनरली ये इस टर्म्स में यूज होता है जब वी आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर, और जाहिर है उधर जर्नलिस्ट जो है वो अपनी जिंदगी की परवाह को मद्देनजर रखते हुए, यानी कि उसको सेफ बनाते हुए अगर उन्होंने रिपोर्टिंग करनी है तो दे हैव टू मेक श्योर कि वो आर्मी के साथ जाएं। बट इन सिचुएशंस लाइक राइट नाउ जब वी आर नॉट इन अ स्टेट ऑफ वॉर, तो फिर आपकी जो है वो ओवरऑल भी जो जिन भी डोमेन्स में आपकी आर्मी काम कर रही होती है वो उसमें
जो है वो बहरहाल कुछ जर्नलिस्ट को इनटू रखती हैं एंड दे मेक श्योर कि पब्लिक तक जो भी हमारा काम हो रहा है वो पहुंचे। तो ISPR इज अ मेजर प्लेयर ओवर दैट। देन वी आल्सो सी कि ISPR जो है वो सॉफ्ट इमेज बनाने के लिए जो है वो किस तरह आपका मीडियम यूज करता है, ड्रामे प्रोड्यूस करता है, म्यूजिक बनाता है, ऑल ऑफ दोज थिंग्स। ठीक है, सो वो भी एक अच्छी स्टडी है टू सी कि किस तरह जो है PR यूज की जा रही है और एडवर्टाइजिंग यूज की जा रही है टू promote your work। इसके अलावा और बाकी इंस्टीट्यूशंस या मिनिस्ट्रीज आ जाती हैं। ठीक है, तो हमारी बाकी मिनिस्ट्रीज में जैसे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज है और मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, आपकी वापडा आ गई। ठीक है, इसके अलावा आपके ऑटोनोमस बॉडीज भी आ गई। सो अगर वापडा एक ओवरऑल मिनिस्ट्री है तो उसके अलावा लेस्को के अपने कम्युनिकेशन का कोई टीम होगी जो लेस्को का देख रही होगी और उधर KESC के अलग लोग होंगे जो देख रहे होंगे। आपकी सुई गैस वालों आ गए। आपकी जितनी भी डिफरेंट मिनिस्ट्रीज है और जो जितनी भी लोकल बॉडीज और है उन सब के अंदर भी कोई ना कोई लोग होते हैं। इट कुड बी अ डिपार्टमेंट और इट कुड बी अ फ्यू पीपल हु वुड बी टेकिंग केयर ऑफ योर कम्युनिकेशन। ठीक है, अब वो प्रोसेस ये होता है कि जो आपकी स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन जहां तक पब्लिक रिलेशंस की बात आती है उसके लिए जनरली आपके पास लोग होते हैं। यू हैव योर पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स और पब्लिक रिलेशन मैनेजर्स जो ये चीजें डील कर रहे होते हैं। बट उसके अलावा जो है आपका जहां तक एडवर्टाइजिंग वगैरह का होता है उसके लिए मिनिस्ट्रीज को एक वही प्रोसेस फॉलो करना होता है जो ऑलरेडी प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ने, PID ने आपके लिए सेट कर दिया हुआ है। सो एड्स किस तरह जाएंगे न्यूज़पेपर्स में या किस तरह जाएंगे चैनल्स में, वो उसके लिए ऑलरेडी रूल्स एंड रेगुलेशन जो हैं वो मौजूद हैं और वो MOIB की वेबसाइट पे और अदरवाइज वो फ्रॉम टाइम टू टाइम जो है वो चीजें पब्लिक करते रहते हैं और वो मिनिस्ट्रीज और जितनी भी ऑटोनोमस बॉडीज काम कर रही हैं उसके अंदर वो लोग इसको फॉलो करती हैं। सेमी गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस भी इसमें आ जाती हैं। ठीक है, एंड देन समथिंग जो हम लोग एज सच गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशंस में नहीं रख सकते बट दे आर अगेन अ मेजर प्लेयर। और एज फार एज आई हैव सीन जो जिस लेवल की एडवर्टाइजमेंट और जिस लेवल की जो है वो कैंपेन चलती हैं इधर, वो भी चाहे वो एड एजेंसीज हो या चाहे वो मीडिया हो, वो कभी भी मना नहीं करता। ये है हमारी इंटरनेशनल NGOs एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपका यूनाइटेड नेशंस है एंड वी नो कि यूनाइटेड नेशंस की काफी ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान में काफी एक्टिवली काम करती हैं, चाहे वो यूनेस्को हो, चाहे वो UN वुमेन हो, चाहे वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो, या वो इनका जो वो फूड प्रोग्राम है वो लोग हो, या जो एक उससे रिलेटेड है रेफ्यूजीज से रिलेटेड है। सो ऑल दीज डिफरेंट विंग्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस दे आर वर्किंग इन पाकिस्तान। और इन लोगों के जो बजट्स होते हैं वो काफी ही ज्यादा elaborated बजट्स होते हैं एंड टू रन देयर कैंपेन्स एंड ऑल वो यूजली जो है वो एजेंसीज को कांटेक्ट करती हैं और एजेंसी जो है उनके एड्स बनाने के लिए या तो क्रिएटिव के लिए या अदरवाइज भी एड स्पेंड और इन चीजों के लिए मीडिया बाइंग के लिए भी एजेंसीज का बहरहाल इंटरनेशनल NGO जो है वो रुख करती हैं। तो इसलिए ये भी एक बहुत बड़े प्लेयर्स हैं इन द ओवरऑल एडवर्टाइजिंग गेम हियर इन पाकिस्तान। और काफी ज्यादा बिजनेस जो है वो आपको इंटरनेशनल NGOs के थ्रू जो है वो मिलता है। ऑफ लेट अगेन UN तो खैर एक मेजर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है बट कुछ ऑर्गेनाइजेशन को लेके जैसे सेव द चिल्ड्रन थी और 2-3 थी जिसको लेके थोड़ी बहुत गवर्नमेंट ने जो है वो इतराजात उठाए थे और उनका जो काम है पाकिस्तान में वो लिमिट किया था। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो काफी ज्यादा अभी हमारी इंटरनेशनल NGOs ऑल्सो जो कि बाहर की डिफरेंट कंट्रीज के यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, उनको हम INGOs तो नहीं कह सकते बट दे आर काइंड ऑफ उनके एम्बेसडर्स जो हैं वो यहाँ पर हैं और वो अपनी कंट्रीज में जो जो चीजें उनका एजेंडा है दैट यू नो दे हैव टू इम्प्लीमेंट हेयर उन इश्यूज के ऊपर बहुत ज्यादा काम करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल के FNF है तो आप देखो जो फ्रेडरिक न्यूमन फाउंडेशन है वो भी एक तरह की इंटरनेशनल NGO ही है। तो वो दे आर वर्किंग ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स रिलेटेड टू जर्नलिज्म एंड मीडिया हियर इन पाकिस्तान। उनके डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं तो उसके ऊपर काम करते रहते हैं एंड देन दे हैव बजट्स फॉर दोज थिंग्स। तो पीपल हु आर वर्किंग इन एजेंसीज अगर वो उनको पिच करें तो अक्सर काफी अच्छे प्रोजेक्ट जो है
वो उसमें गेन कर लेते हैं। बट हमारे यहाँ जनरली होता है कि जो लोकल एनजीओज होती हैं वो इन इंटरनेशनल के साथ टाई अप करती हैं और इनके कम्युनिकेशन प्लान्स बनाती है, तो उधर काफी हद तक एक कंपटीशन भी है with the other sectors, other development organizations that the ad agencies have to compete with. So ये सारा हमारा एक एक्सक्यूज मी, ये हमारा सारा एक गवर्नमेंट वाला सेक्टर कह लो या उससे रिलेटेड इदारे जो कि जरूरी हैं और जो एक मेजर प्लेयर्स हैं वो इसमें जो है वो इंक्लूडेड है। अगेन यहाँ पर इफ यू वांट टू वर्क, तो ये सारी जगहों पे ऑलरेडी कम्युनिकेशन से रिलेटेड जॉब्स भी होती हैं, बट इवन इफ यू आर वर्किंग इन एनी रेगुलर ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग एजेंसी एज वेल, तो भी आपका यहाँ पे पाला पड़ सकता है, बिकॉज काफी रेगुलेटरी मेथड्स के रेगुलेटरी मामलों में जो है आपको हो सकता है कि इन मिनिस्ट्रीज का रुख करना पड़े या इनके साथ मिलकर काम करना पड़े, तो वो भी सारी चीज जो है वो हमें माइंड में रखनी चाहिए। Now comes your corporate sector. Now corporate sector, as we all know, is something जिसके बगैर again advertising का business चल ही नहीं सकता, because advertising is all about selling products, promoting services and ideas, और वो उनके जो makers हैं वो कौन है, वो आपके corporate sector ही है, ठीक है। तो आप अगर ad बना रहे हो लक्स का, तो आप एक बड़े लकी एडवर्टाइजिंग एजेंसी माने जाओगे, बिकॉज आपको यूनिलीवर जैसा क्लाइंट मिला हुआ है। और हमारे यहाँ जो है वो कॉर्पोरेट सेक्टर में भी फिर आगे मजीद different demarcations हैं, that there are multinationals and there are some smaller organizations as well, और local based भी हैं। तो corporate sector में अभी currently हमारा क्या क्या important players हैं। First of all, we have our multinationals. Multinationals, if somebody can tell me क्या होते हैं? मैम इंटरनेशनल कंपनीज होती हैं। इंटरनेशनल कंपनीज जो कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में ऑपरेट कर रही हैं, ठीक है। दे हैव सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड एंड दे फॉलो डिफरेंट इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर्स। तो उनकी जो भी प्रोडक्ट होगी डेफिनेटली सिंस इट्स एम फॉर अ बिगर मार्केट, तो वो उनकी प्रोडक्ट यूजुअली हम ये भी कहते हैं जी थोड़ी क्वालिटी की होगी। ऑल्सो जो मल्टीनेशनल्स होती हैं उनकी जो ओवरऑल कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी है वो लोकल लेवल पे डिसाइड भी नहीं होती है। सो फॉर एग्जांपल, अगर अभी मैंने यूनिलीवर का जिक्र किया था, तो यूनिलीवर अगर अपनी किसी प्रोडक्ट की कोई स्पेसिफिक वो बना रहा है, कैंपेन बना रहा है, सो चांसेस आर कि वो कैंपेन जो डिजाइन हुई है या उसकी ओवरऑल स्ट्रेटेजी क्या होगी वो इंटरनेशनल लेवल पे ही वो लोग डिसाइड करेंगे, जहाँ पे भी उनके हेड ऑफिस है और बाकी अपने डिफरेंट रीजनल ऑफिसेस को मिला के दे विल डिसाइड अपॉन कि लक्स है। तो अभी फॉर एग्जांपल लक्स का अगर आप लोगों ने वो एड देखा हो जिसमें सबा कमर थी एंड शी यूज्ड टू से कि खूबसूरती से क्या घबराना, थोड़ा सा वो एड उनका पहले देयर यूज्ड टू बी लाइक अ लॉट ऑफ एड जो सिर्फ वैसे ब्यूटी पे बहुत फोकस करते थे, बट अब वो लोग इस तरफ आ गए हैं कि जी हमने इनर ब्यूटी के ऊपर भी फोकस करना है एंड वी हैव टू मेक यानी कि वी हैव टू डिपिक्ट वुमेन हु आर कॉन्फिडेंट एज वेल, ठीक है। तो वो एड सिर्फ पाकिस्तान की हद तक नहीं है, वो जो स्ट्रेटेजी है वो पूरी दुनिया की हद तक है। तो कहीं यूएस में वो एड और तरह से बना होगा, इंडिया में वो एड और तरह से बना होगा, पाकिस्तान में और तरह से बना होगा, आपके ब्रांड एम्बेसडर्स हर जगह डिफरेंट होंगे, पर जो कॉन्सेप्ट है वो सेम ही है, क्योंकि उन्होंने एक ओवरऑल अपनी में भी 1-2 साल के लिए जो भी स्ट्रेटेजी बनाई है वो उन्होंने बना दी है कि हमने इस तरह से अपनी एडवर्टीजमेंट को फोकस करना है, ठीक है। या अगर कोका कोला है, उन्होंने एक एडवर्टीजमेंट अपनी फोकस कर ली है ओवरऑल अपनी कैंपेन के हम लोगों ने करना है ओपन हैप्पीनेस के नाम से। तो वो जब ओपन हैप्पीनेस कैंपेन चली थी तो पूरी दुनिया में हर कंट्री ने अपने अपने हिसाब से उस पर किया, लेकिन थीम बेसिकली सेम रही थी। तो मल्टीनेशनल्स में ये होता है कि मल्टीनेशनल्स की एक तो पहली बात ये है कि दे हैव रियली गुड बजट्स व्हिच आई ऑलवेज कॉल कि उनके क्रेजी बजट्स होते हैं सारी कम्युनिकेशंस मैनेज करने में, एडवर्टाइजिंग भी और पब्लिक रिलेशंस भी। सो उसमें अगर आप इन हाउस भी काम कर रहे हो देन यू आर गोइंग टू लर्न अ लॉट। और प्लस ये कि उनके यहाँ होता है कि वो ओवरऑल थीम्स फॉलो कर रहे होते हैं, तो स्ट्रेटेजिक लेवल पे काफी डिसीजन जो हैं वो ऊपर से आती हैं, बट उसकी एग्जीक्यूशन वो फिर करते हैं यहाँ पे मौजूद होके अपने इन हाउस टीम के साथ, और इसके अलावा वो एजेंसीज के साथ मिलके जो है वो काम करते हैं। सो हो सकता है वो किसी एजेंसी के लिए क्रिएटिव जो है सॉरी किसी एड का जो क्रिएटिव है वो किसी एजेंसी को दे दें, अपना डिजिटल किसी और एजेंसी को हैंडल करने के लिए देते हैं, कोई एक स्पेसिफिक CSR प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है
तो वो किसी और एजेंसी को दे दें, तो उनके पास काफी ज्यादा बजट होता है, तो वो अपना काम काफी लोगों में बांटते हैं। तो इसलिए जो है मल्टीनेशनल इज योर लाइक बिगेस्ट ड्रीम, कि अगर आपको एज अ क्लाइंट, अगर आप एक एजेंसी हो और आपको कोई उनका अकाउंट मिल जाता है हैंडल करने के लिए किसी मल्टीनेशनल का, देन इट इज गोइंग टू बी अ ह्यूज थिंग. Our top multinationals currently operating in Pakistan are Unilever, Procter and Gamble, Reckitt Benckiser, and of course ये Nestle and all those companies जो कि बहरहाल थोड़ी और भी कंट्रीज में काम कर रही हैं और इधर भी काम कर रही हैं, तो वही हमारे जो है मेजर क्लाइंट हैं या मेजर जो है ऑर्गेनाइजेशंस हैं इन टर्म्स ऑफ मल्टीनेशनल. देन कम्स आर पाकिस्तान बेस्ड conglomerates. ये वो कंपनीज होती हैं जो कि एक what do we call it? I mean, it could be a business जो कि मुख्तलिफ सेक्टर्स में जो है वो काम कर रहा है, जस्ट लाइक मल्टीनेशनल, लेकिन वो पाकिस्तान बेस्ड होती हैं. तो अदर देन पाकिस्तान उनका बिजनेस कहीं और नहीं होगा, बट दे आर क्वाइट ह्यूज देमसेल्व्स. ठीक है, सो वो एक ही बिजनेस में सिर्फ उन्होंने अपनी टांगें नहीं फंसाई होंगी. दे वुड बी द वन जिनके काफी ज्यादा बिजनेसेस होंगे. फॉर एग्जाम्पल आपका ये जो मियां मंशा है, उनका जो निशाद ग्रुप है, सो यू नो के निशाद ग्रुप जो है उनके पास काफी ज्यादा चीजें हैं. दे ओन एमसीबी एज वेल. ठीक है, उनके पास वो जो हपको पावर प्लांट और ये जो सारा एनर्जी वगैरह मुल्क में ऑपरेट हो रही है, तो उनकी भी कुछ जो प्राइवेट एनर्जी आ रही है हमारे पास, उसके भी कुछ जो है वो कंपनीज उनके पास हैं, वो लोग वो भी ऑपरेट करते हैं. फिर एक जो पूरा निशात लिनन है जो कि क्लोथिंग में आ जाता है, वो लोग ये भी ऑपरेट करते हैं. देन इसके अलावा व्हाट एल्स डू दे हैव, एम्पोरियम मॉल जो है वो निशात वालों का है, निशात होटल्स हैं. ठीक है, तो उनकी एक कंपनी है और उसमें वो डिफरेंट डिफरेंट जो है चीजों को डील कर रहे हैं. या आपके ये जो हाशवानी है, हाशवानी जो है उनका जो हाशू ग्रुप है, वो होटल्स में भी उनके इन्वेस्टमेंट है. उनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो किसी फाइनेंशियल एंटिटी में भी होगी. उनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो किसी प्रोडक्ट्स में भी होगी, आर्किटेक्चर में भी होगी, वो होगा. इसके अलावा जो रजाक दाऊद वगैरह, अब तो रजाक दाऊद वगैरह है, उनका टेस्कॉन भी है, और दूसरी भी जो है दाऊद ग्रुप की काफी ज्यादा जो है वो बिजनेसेस में वो लोग इन्वॉल्व है. एंड वी डू हैव अ लॉट ऑफ सच बिजनेसेस. ज्यादातर ये बिजनेसेस जो है ये लेगेसी बेस्ड बिजनेसेस है. लेगेसी बेस्ड बिजनेसेस कुछ आइडिया आपको क्या होते हैं? मैम जो जनरेशन टू जनरेशन आगे पास ऑन किए जाते हैं. या सो वो जनरेशन एक किसी ने बनाया बिजनेस, आई एम फॉरगेटिंग दैट नेम. ये जो बाबर अली वगैरह है, ठीक है ना, इनके जो भी दादा शादा थे, तो वो सुलेमान दाऊद नहीं, वो तो उनका हो गया ना, डेस्कॉन वालों के. हाँ, ये नहीं, ये पैकेजेस वो वाले हैं ना. यस. ठीक है, सो मुझे एग्जैक्टली नाम भूल गया, जो भी वो उनके दादा थे. तो वो ये सारे जो लोग हैं, तो उनके पैकेजेस है, तो वो पैकेजिंग से उन्होंने बेसिकली स्टार्ट किया, ट्रीट कॉर्पोरेशन, और उसके बाद जो है अभी नेस्ले भी वो. अच्छा, फिर प्लस ये कि अक्सर वो इंटरनेशनल चीजों को भी, मल्टीनेशनल भी उनके अंदर आ जाती है, तो उसका भी इनके पास काम है. फिर उन्होंने मॉल भी खोल लिए हैं और उनके पास 10,000 चीजें हैं, मिल्क्स भी बना रहे हैं और क्रीम्स भी बना रहे हैं. उनके साथ लम्स यूनिवर्सिटी उनकी है. लम्स और क्या उनकी चाहिए? है. ठीक है, आई थिंक सारी लम्स में कोई 3-4 बिल्डिंग उनके दादा ऊपर दादा के नाम है, और बीएनयू में उनके नाम पे बिल्डिंग्स थी. तो दे आर द पीपल हु हैव they are investing in education, they are investing in all different things, all different sectors which you can see. तो ये ज्यादातर हमारे लेगेसी बिजनेसेस हैं, और ये भी आपके बहुत बड़े क्लाइंट्स होते हैं. अगेन जस्ट लाइक मल्टीनेशनल, जनरली ऐसा नहीं होता कि ये अपना सारा का सारा जो है वो पैसा किसी एक एजेंसी को दे दे. ठीक है, कि आप सारा काम करो. एक कॉन्सेप्ट होता है एडवर्टाइजिंग में, AOR which is your मेन एजेंसी. आप ज्यादातर अपना जो काम है वो किसी एक एजेंसी को दे देते हो. ठीक है ना, यानी कि दैट वुड बी योर एजेंसी ऑफ रिकॉर्ड. इसको एजेंसी ऑफ रिकॉर्ड कहा जाता है, और वो ही आपकी सारी कम्युनिकेशन डील कर रही होती है. तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये पहले बहुत होता था, लाइक आज से 10-15 साल पहले आपकी एक ही एजेंसी होती थी जो कि आपकी सारी एडवर्टाइजमेंट देख रही होती थी. बट अब ये वक्त के साथ साथ बहरहाल चेंज हो गया है.
एंड अब जो है अब ये होता है कि आपकी थोड़ी सी कुछ प्रोजेक्ट्स एक एजेंसी देख रही होती है, दूसरे प्रोजेक्ट दूसरी देख रही होती है, एंड सो ऑन। तो ये ज्यादातर जो आपकी बिजनेसेस हैं दे वर्क लाइक दैट। अच्छा, इसके अलावा आपकी मिड साइड कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस भी है। टाइम के साथ साथ जो है अब काफी तरह से एडवर्टाइजिंग का लैंडस्केप वैसे भी चेंज हो गया, मेथड्स भी चेंज हो गए, तो काफी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो पहले एडवर्टाइजिंग नहीं भी करती थी, अब वो लोग भी करना शुरू हो गए। सो मिड साइज एडवर्ट आपकी कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन में वो चीज आ जाएंगी जो कि किसी एक ही बिजनेस पे डील कर रही हैं, बट दे हैव अ गुड गुड रिसोर्सेज एंड दे हैव गुड बजट, जो कि आपको यानी कि इफ यू कैन टेक देयर प्रोजेक्ट, तो जाहिर है आपका पोर्टफोलियो भी अच्छा होता है और आप साथ साथ जो है वो you can gain experience and you can make monies as well. अब जैसे अब अभी somebody talk about LUMS, तो जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी भी जो है वो एडवर्टाइजिंग होती है। अब वो इतनी रेगुलर लेवल पे नहीं होती, सीजनल होती है, वी डू अंडरस्टैंड दैट, बट उसके लिए वो डिफरेंट एडवर्टाइजिंग एजेंसीज को अप्रोच करते हैं। आपके एफसीसी में भी अगर आपके जो एडमिशन टाइम्स पे ऐड चलते हैं या आपके जो इवन सोशल मीडिया पे ये लोग वीडियोस भी लगाते हैं, तो आपका कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट खुद नहीं बनाता, दे डोंट हैव फैसिलिटीज, तो उन्होंने अपना वो काम किसी एजेंसी को दिया हुआ है एंड दे आर द वंस हु विल वर्क ऑन दैट। सो आपकी इस तरह सेपरेट एंटिटीज जो हैं उनके भी, और उसमें भी काफी ऐसे बिजनेसेस हैं जो कि टेक बेस्ड है और बाहर से आए हुए हैं और उनके पास ऑलरेडी पैसा है और उन्होंने काफी ज्यादा वीसी फंड्स, वेंचर कैपिटलिस्ट ने उनको पैसा लगाया हुआ है। सो एड एजेंसीज को जब मिलते हैं उनके अकाउंट, तो काफी अच्छा उनको जो है वो आइडिया होता है। और हमारे लोकल बिजनेसेस भी इसमें आ जाते हैं। जैसे आप अगर लाहौर की बात करें तो हमारे कितने लोकल रेस्टोरेंट्स हैं जो कि अपने इन हाउस भी काम कर रहे होंगे कम्युनिकेशंस के लिए, बट दे माइट जस्ट हायर वन पर्सन फॉर दैट, और बाकी का वो सारा काम जो है वो आउटसोर्स कर देंगे एजेंसीज को। तो ये सारी जो है आपकी क्लाइंटेज है। एंड ऑफ कोर्स वी हैव आवर टेक्नोलॉजी सेंटर स्टार्टअप्स। अब ऑफ लेट जो है स्टार्टअप्स का बड़ा एक सिस्टम चल पड़ा है और ये टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप्स होते हैं। इनकी जो मार्केटिंग और कम्युनिकेशन होती है वो भी ज्यादातर डिजिटल पर होती हैं, बट सम टेक बेस्ड स्टार्टअप्स हैव ग्रोन सो बिग कि वो डिजिटल के अलावा भी अब एडवर्टाइजिंग भी आप उनकी टेलीविजन पे देखोगे, न्यूज़पेपर में देखोगे, जैसे कि फूड पांडा हो गया या ज़मीन.com हो गया या उबर करीम हो गई, ये सारे क्या है, ये टेक बेस्ड स्टार्टअप्स हैं। एंड उस लिहाज से देखा जाए तो हम इनको अगर ये टेलीविजन पे ना भी करें तो कोई मसला नहीं है, या OLX है, बट नाउ वी सी दैट ऑल ऑफ देम एक्चुअली एडवर्टाइज ऑन टेलीविजन एज वेल। तराज भी है। सो आई मीन वी डू हैव अ लॉट ऑफ, अब इनको हम स्टार्टअप तो नहीं कह सकते, थोड़ी अब मशहूर ही हो गई सारी कंपनीज, बट टेक बेस्ड कंपनीज हैं विच आर वर्किंग, एंड ऑफ कोर्स एजेंसीज के लिए ये भी एक अपॉर्चुनिटीज हैं टू गेन देयर क्लाइंटेज। अच्छा, now the agencies which are your ad agencies and your PR agencies, but why I have not written ad and PR agencies, उसकी वजह ये कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो है ना एक कॉन्सेप्ट है कि हर बंदे ने हर काम करना है, ठीक है। सो वी डू हैव दिस थिंग, आई एम श्योर कि आप लोग अपनी पता नहीं लाइफ पे प्रैक्टिस करते होंगे या नहीं, बट आई हैव सीन इट मैनी टाइम्स कि हमारे यहाँ ना डेजिग्नेटेड या जिसे कहते हैं ना स्पेशलाइज्ड एजेंसीज कम है। ये नहीं कि बिल्कुल नहीं है, कुछ हैं जो सिर्फ पब्लिक रिलेशंस ही देखती हैं, बट जनरली हमारे यहाँ ऐसी ही एजेंसीज हैं जो कि कहेंगे हाँ जी हम एडवर्टाइजिंग भी कर देंगे, हम PR भी कर देंगे, हम एड्स बना भी देंगे, हम मीडिया भी बाय कर लेंगे, हम सब कुछ कर लेंगे, ठीक है। तो मैंने इसलिए ओवरऑल उसमें एजेंसीज का ही नाम दिया है, बट दैट इंक्लूड्स बेसिकली और एडवर्टाइजिंग एजेंसी जो कि मेनली एडवर्टाइजिंग में डील करती हैं। एडवर्टाइजिंग में आपके पास स्ट्रेटेजी भी आ जाएगी और उसके बाद क्रिएटिव भी आ जाएगा, लाइक एड्स बनाना एंड ऑल, और फिर वो एट टाइम जो है वो एड स्पॉट्स खरीद के जो मीडिया बाइंग जिसको कहा जाता है वो काम भी करती है। लेकिन मीडिया बाइंग हाउसेस अलग से भी होते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हमारे यहाँ या दुनिया में काफी ज्यादा इस तरह की एजेंसीज हैं जो कि ऑल इन वन हो गई हैं, तो इसकी वजह से हम कह लेंगे मीडिया बाइंग हाउसेस अलग से नहीं होते। स्टिल देयर आर अ फ्यू वंस, जैसे अभी हमारे यहाँ भी 2-3 हैं जो कि सिर्फ मीडिया बाइंग ही करते हैं। सो मीडिया बाइंग हाउसेस होते हैं जो जिनका बेसिकली काम ही होता है कि दे हैव टू थिंक, यानी कि दे जस्ट मेक अ स्ट्रेटेजी फॉर यू कि दिस इज योर प्रोडक्ट, दिस इज योर एडवर्टाइजमेंट, और हमने ये कौन कौन से जो है वो रेलेवेंट मीडिया पे लगाना है, और उसके लिए वो उन मीडिया हाउसेस में जाके स्पेस खरीदते हैं, स्पॉट्स खरीदते हैं, उनसे निगोशिएट करते हैं। वो सारा एक प्रोसेस होता है कि किस तरह कम से कम रेट पे अच्छे से अच्छा स्पॉट लेके हम अपने क्लाइंट की जो है वो एड चला सके। तो वो मीडिया बाइंग हाउसेस का ये सारा प्रोसेस होता है।
देन वी हैव ऑफ कोर्स पीआर एजेंसी जो कि पब्लिक रिलेशंस देखती हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर की भी, गवर्नमेंट सेक्टर की भी, उनके डिफरेंट किस्म के क्लाइंट्स होते हैं और वो प्रेस के साथ रिलेशन बनाने में भी उनका काम होता है। एट टाइम्स वो लॉबिंग भी कर रही होती हैं, ठीक है, एट टाइम्स वो मार्केट रिसर्च भी कर रही होती हैं। तो पीआर एजेंसी जो है वो काफी डिफरेंट डोमेन्स में जो है वो काम कर रही होती हैं फॉर देयर क्लाइंट्स। Then we have digital marketing firms. Now we have some agencies जो कि specifically digital के ऊपर काम कर रही है, because digital has grown so big of late that there were some agencies which just started off, जिनको हम starting में कहते थे कि ये सॉफ्टवेयर हाउस है, बट अब वो सॉफ्टवेयर हाउस वाला कॉन्सेप्ट नहीं रहा है, कुछ लोकल लेवल पे ही स्टार्ट हुई, बट दे हैव ग्रोन सो बिग, जैसे ब्रेमर्स थी या ब्रेमर्स है या डिजिट्स है या क्रिएटिव क्योस है, जो कि उस लिहाज से इंटरनेट मार्केटिंग फर्म के तौर पे दे स्टार्टेड ऑफ, बट दे हैव लाइक बिकम अ फुल फ्लेज डिजिटल मार्केटिंग फर्म्स, और वो काफी ज्यादा उनकी अच्छी क्लाइंट बेस जो है वो है। सो डिजिटल मार्केटिंग फर्म्स भी इसमें आ जाती हैं। देन वी आल्सो हैव आवर प्रोडक्शन हाउसेस, इसको भी हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, बिकॉज समहाउ अदर अ लॉट ऑफ एक जो काम है एडवर्टाइजिंग में वो है ये कि आपने प्रोड्यूस करनी है चीजें, ठीक है। सो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज के जनरली अपने ही प्रोडक्शन हाउसेज होते हैं जिसके थ्रू वो सारे एड्स वगैरह बनाती हैं, बट एट टाइम्स देयर आर सेपरेट प्रोडक्शन हाउसेज एज वेल। और अब रिसेंटली जो मार्केट में कुछ चेंजेस आए हैं उसमें ये हुआ है कि इवन इफ यू आर नॉट एन एड एजेंसी, आप एक सिंपल प्रोडक्शन हाउस हो, मे बी यू आर जस्ट रिसेंट ग्रेजुएट और आप अच्छे एड्स बना सकते हो, तो आप इंडिविजुअली भी जो है क्लाइंट्स को पिच कर सकते हो, कॉर्पोरेट सेक्टर में भी और गवर्नमेंट सेक्टर में भी। तो प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट बेसिस जो है वो प्रोडक्शन हाउसेस को कोई ना कोई प्रोजेक्ट असाइन कर देंगे फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, एंड देन वंस दे आर डन विद दैट प्रोजेक्ट वो उसकी जो भी पेमेंट वगैरह है वो रिलीज करेंगे। तो प्रोडक्शन हाउसेस भी जो है वो ऑफ लेट कुछ इस तरह के आए हैं जो कि इसके ऊपर काफी ज्यादा काम कर रहे हैं। वो चाहे मीडिया बाइंग ना कर रहे हो, वो चाहे स्ट्रेटेजी ना बना के दे रहे हो, लेकिन जो काम पड़ा है आपकी ऑर्गेनाइजेशन को, और वो उन्होंने फॉर एग्जाम्पल एक कैंपेन के 10 वीडियोस बनानी है तो वो 10 वीडियोस आपको बना के दे देंगे आपके किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए, एंड देयर जॉब विल बी डन। सो दिस इज अगेन समथिंग which is quite like not very new concept, but say पिछले कोई 5-1 सालों में काफी ज्यादा हुआ है, और इसकी तरफ भी बहरहाल इफ यू गाइज वांट टू फोकस लेटर ऑन तो आप लोग कर सकते हो फॉर योर ओन कैरियर प्रेफरेंसेस एज वेल, ठीक है। सो दीज एंड देन वी हैव आवर फुल सर्विस एजेंसी। तो बेसिकली जब हम लोग एडवर्टाइजिंग एजेंसीज की बात भी करेंगे ना, दैट एक्टिविटी का आपको आइडिया होगा कि ज्यादातर हमारी जो है ना वो फुल सर्विस एजेंसीज हैं, यानी कि वो ऑल इन वन है। वो कहती है हम जो है वो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स है, and actually they are masters of none as well, but generally they are like all in one है। तो वो सब कुछ देखेंगे, उनके पास आप क्लाइंट ये वो एजेंसीज हैं जो कि आपके AOR या एजेंसी ऑफ रिकॉर्ड भी बन सकती है, क्योंकि वो स्टार्टिंग फ्रॉम योर एडवर्टाइजिंग की स्ट्रेटेजी टिल आपकी जो है वो टेलीविजन और उस पर चल रहा है और उसकी क्या इवेल्युएशन आई है और कितनी आपकी कस्टमर बेस भी उसके बाद इंक्रीज हो गई है, वो सब चीजें करेंगे। वो इवेंट्स भी मैनेज करा लेंगे, वो दे आर इनटू एवरीथिंग। और ये वो एजेंसीज है जिन्होंने बाहर की एडवर्टाइजिंग एजेंसीज के साथ एफिलिएशन भी की हुई है, सो दे आर रियली ह्यूज नेम्स दैट वे। तो मेनली हमारे यहाँ जो है ना वो फुल सर्विस एजेंसीज का राइट नाउ जो है वो ज्यादा, जैसे कहना चाहिए ना कि मार्केट में नाम किनका ज्यादा है, वो ज्यादातर फुल सर्विस एजेंसीज ही हैं, एड एजेंसीज जिनका नाम मार्केट में राइट नाउ थोड़ा ज्यादा है।